Hello everyone. Now let's see the last part of meiosis, meiosis 2. We have seen how meiosis 1 is completed. It was a long, complex process involving various events. Many important features were there. We have completed that most important part and I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लर्न भी हो गया होगा. एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट. ये तो कुछ भी नहीं है. meiosis 2 is simply the copy of mitosis. Meiosis 2 is simply the copy of mitosis. तो mitosis में आपने जो देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एना और टीलो, सेम अभी रिपीट करने का है. ओके, तो इसके लिए कुछ भी नया नहीं है इसमें. बस एक बार मैं meiosis 1 से स्टार्ट करके एक बार बता दे रहा फटाफट. व्हाट वाज meiosis 1? उसमें दो स्टेजेस थे, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1. कैरियोकाइनेसिस में पीमैट 1 और साइटोकाइनेसिस 1 जैसा का वैसा. पीमैट 1 में प्रोफेज 1 के 5 सब फेजेस, लेजी पैडी, लेप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस. लेप्टोटिन में क्या होता? In leptotin, the chromosomes become thin and they become monad chromosomes. They form bucket-like stage. Okay, that thin chromosomes they start to pair in zygotin phase due to synaptolemon complex in between them. It is called synapsis, and the process leads to formation of bivalent or tetrad chromosomes. In packeting phase, the tetrad chromosomes which are present they overlap with each other. They form egg-shaped structures known as crossover points or chiasmas. And they cut at the formation of recombination nodules with the help of recombinase, DNA ligase, DNA endonuclease, and exchange of material between non-sister chromatids will occur. Then in diplotin, these chromosomes start to repel and they start to move away from each other due to repulsive forces, electrostatic forces and despiralization. This was spiralization and they move away due to despiralization. In dikinesis phase, complete terminalization will occur, repulsion will be maximum and the chromosomes will be having complete separation due to their chiasmas at the terminal point. This is called terminalization, movement of chiasma towards terminal edge, and you have got the two chromosomes separated from each other. Pairs were separated from each other completely. Okay, but still they are in pairs. At certain places you can still find synaptonemal complexes in diapkinesis. इसके बाद मेटाफेज 1 स्टार्ट होता, प्रोफेज 1 खत्म हो गया. इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ऑल दी फेजेस. मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स पूरे मेटाफेज प्लेट पे आ जाते, वहां पे पेयर्स जमा हो जाती. एनाफेज 1 में और स्पिंडल भी बन गया था. और फिर एनाफेज 1 में आपका जो स्पिंडल कॉम्प्लेक्स है वो स्पिंडल वर्क करते और क्रोमोसोम्स को पुल करते, लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं करने के, सिंपली पेयर्स को सेपरेट करने का है. इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पेयर्स इज नोन एज डिसजंक्शन. Separation of pairs is known as disjunction. That leads to movement of 23 towards one and 23 towards another group, and you get two haploid daughter nuclei which are formed in telophase, and cytokinesis is done, and you get at the end of meiosis 1 what is the result? You get two haploid daughter cells, two haploid daughter cells, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे भी क्रोमोसोम था. ओके, मैं एक ही क्रोमोसोम ड्रॉ करके बताऊंगा. कैसा क्रोमोसोम था अपना? ये क्रोमोसोम पूरा व्हाइट था, बस इसके एंड्स ब्लैक थे, और इसमें एंड्स व्हाइट थे और बाकी का क्रोमोसोम पूरा ब्लैक था. राइट, सेम कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझने के लिए. एज इट इज उसके आगे ही बढ़ रहा हूं. So this was the result of telophase 1, and at the end of cytokinesis 1 फरो बन के दो अलग अलग सेल्स तैयार हुए थे. They were having haploid number of chromosomes. The reduction in chromosome number occurred in your anaphase, क्योंकि क्रोमोसोम्स को तोड़े नहीं थे, डायरेक्ट सेपरेट कर दिए थे. तो 46 क्रोमोसोम को 23 क्रोमोसोम ये सेल को दे दिए 23 क्रोमोसोम, मतलब तुमने सेट आधा आधा कर दिए. क्रोमोसोम नंबर वाज रिड्यूस्ड टू हाफ. वही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था. बच्चों को समझता नहीं क्रोमोसोम नंबर आधे कैसे होते. सो विच फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ? दैट्स योर एनाफेज 1. और उसके बाद आपको ये मिल गया आपका meiosis 2. अब यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे. अब इसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 वही करने का, अपने को कोई नया नहीं करने का है. कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 कंटिन्यू करना. अब ये कैसे होता? तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप रहता बिटवीन meiosis 1 एंड meiosis 2. Between meiosis 1 and meiosis 2 there is a short resting period which may be present or absent. सेल्स हो सकता है ये दोनों सेल्स तुरंत डिवाइड हो जाएंगे या कुछ समय का टाइम लेंगे, गैप लेंगे, कुछ सेकंड, मिनटों का, कुछ घंटे का, और उसके बाद डिवाइड होंगे. हो सकता
जरूरी नहीं हर बार होगा, कभी कभी तो डायरेक्ट डिवाइड होते हैं आगे और कभी कभी गैप लेके डिवाइड होते हैं. So when there is a short resting period between the next meiosis, that resting period is known as interkinesis. Interkinesis. What is interkinesis? Inter मतलब in between, kinesis मतलब division. So the in between two divisions, meiosis 1 and meiosis 2, there may be a short period of rest, short resting period. It may be present or may be absent. It is called interkinesis. A short period of rest between meiosis 1 and meiosis 2. Short period of rest between meiosis 1 and meiosis 2. It may be present or absent. It is called interkinesis. After interkinesis is completed, the two daughter cells undergo individual mitotic division just like mitosis. Equational division. अब इसकी डिवीजन कैसी होगी? अपने पास ये ऐसा क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? जैसे अपने पास n is equal to 23 और इधर भी n is equal to 23. तो जैसा ये सेल डिवाइड होंगी वैसे ही ये भी सेल डिवाइड होने वाली, कोई अलग नहीं होगा. हाउ दिस सेल विल नाउ एंटर प्रोफेज 1, दिस सेल विल एंटर नाउ प्रोफेज 2, सॉरी प्रोफेज 2. प्रोफेज 2 में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, वो तो सब ऑलरेडी हो गया है. क्रोमोसोम रेडीमेड बना ले, तो ज्यादा कंडेंसेशन होने की जरूरत है क्या? नहीं. वेरी फ्यू कंडेंसेशन विल अकर इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, उतना कंडेंसेशन होगा. देन सडनली द प्रोफेज 1 इज कंप्लीटेड, द क्रोमोसोम्स आर एंड योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर. Nuclear membrane will disappear here. Your nucleolus will also disappear and you will get a cell like this with free chromosomes. ठीक है. तो ऐसे कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23. मैंने एक ही ड्रॉ करा, ऐसा दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा. समझ रहा है? मैं आपको एक ही ड्रॉ करके बता रहा था. ऐसे दूसरा तीसरा कलर वैसे ही रहेगा अपन ने, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा क्रॉसिंग ओवर हो गया रहता. इधर भी क्रॉसिंग ओवर हो गया रहेगा. दिस विल बी लाइक अ ब्लैक एरिया विल बी हियर. ओके. सो दिस इज योर, these are the two chromosomes that can be studied. अब इसके बाद होता है इसका मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होगा? The chromosomes arrange themselves at equatorial position. Chromosomes arrange themselves at equatorial position. Arrange करो इनको equatorial position पे. बराबर चल रहा है बेटा? मेटाफेज में यही होता. एक बार माइटोसिस की रिवीजन ले लो लगे तो. माइटोसिस देख के आ जाओ, सेम है उसमें भी. ठीक है. इधर भी वही होगा. 1 2, इसका एंड व्हाइट और बाकी क्रोमोसोम ब्लैक. एंड्स व्हाइट, बाकी क्रोमोसोम व्हाइट ब्लैक. अब बोलेंगे सर इतना क्यों ध्यान दे रहे? क्योंकि तुमको क्रोमोसोम कैसे 4 अलग अलग सेल्स बनते हैं वो बताने का है मुझे. ठीक है. अब एनाफेज, फिर इसके बाद आपका स्पिंडल अपैरेटस बन जाएगा. यहाँ पे आपके काइनेटोकोर्स प्रेजेंट रहते हैं. सो काइनेटोकोर्स को अटैच हो जाएंगे आपके स्पिंडल फाइबर्स, कंटिन्यूअस फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स. Okay, here will be your centrioles will be present like this. Similarly, यहाँ पर भी. Okay, so this is centriole. अब आपको ड्रॉ करते टाइम जैसा का वैसा ही ड्रॉ करना. मैं गड़बड़ में बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ठीक से ड्रॉ करना है. स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड. क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट. ओके. अब इसके बाद एनाफेज. अब एनाफेज में क्या होता है? माइटोसिस के ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे ब्रेकिंग पुलिंग करने का अपन ने एनाफेज 1 में नहीं करे थे ब्रेकिंग, सिर्फ सेपरेशन ऑफ पेयर करे थे. यहाँ पे ब्रेकिंग भी करो और फिर टुकड़े को अलग अलग करो. ब्रेकिंग कैसा करते हैं? सेंट्रोमियर इज ब्रोकन हियर. सेंट्रोमियर इज ब्रोकन हियर. दिस सेल विल, क्रोमोसोम विल ब्रेक लाइक दिस, इट विल ब्रेक लाइक. आपने आज कितने क्रोमोसोम थे? 23. इधर कितने थे? 23 टोटल. बराबर. अब इसके 2 टुकड़े हो गए, इसके 2 हो गए. सो 23 के डबल हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? 46. इधर भी 23 के टोटल कितने हो जाएंगे? डबल 46. देखो बोला एनाफेज में क्या होगा? फिर ये 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े, मतलब 2 क्रोमोसोम के कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम तैयार हो गए क्या बेटा? कैसे किया मैंने एनाफेज 2? ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर occurs in anaphase 2. In anaphase 2, it does not occur in anaphase 1. वहां पे सिंपली सेपरेशन ऑफ पेयर. में बार बार हो रहा हूं, ध्यान से समझ के लो. यहाँ पे ब्रेकिंग करने के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे. कैसे डबल हो जाएंगे? 23 के 2 टुकड़े होंगे ना हर एक क्रोमोसोम के, तो कितने हो जाएंगे? हर एक क्रोमोसोम के 2 पीसेस, इसके 2, ऐसे 23 के 2, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 23 into 2 46 पीसेस, इसके 46 पीसेस.
then do separation. Simply pull these pieces, daughter chromosomes move away, they are pulled here. पुलिंग के बाद क्या हो जाएगा आपको, एक क्रोमोसोम इधर, दो क्रोमोसोम इधर, ऐसे पुलिंग होता है दिखाई देंगे, राइट? ओके, एनाफेज एंड में कैसा दिखाई देंगे आपको, ऐसे क्रोमोसोम्स पुल होते हैं दिखाई देंगे। आप देखो कलर्स उनके वापस से वैसे, इसके एंड्स ब्लैक है, इसके भी एंड्स ब्लैक है, लेकिन ये पूरे व्हाइट है। इसके एंड्स व्हाइट है और ये पूरे ब्लैक है, इसके एंड्स व्हाइट है और ये ब्लैक है, राइट? जबकि ये पूरा ब्लैक है, ठीक है? सो ये होगा आपका एनाफेज 2. At the end of anaphase 2 you will get the chromosomes at polar position, chromosomes at 2 poles. Okay, अब इसके बाद टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है, the chromosome से सबसे पहले spindle apparatus disappears, your chromosomes or chromatin material start to condense, condensation चालू रहता, and nuclear membrane, nucleolus, it reappears, nuclear membrane and nucleolus reappears, and at the end a furrow is formed. Furrow formation begins in animal cells, cell plate formation begins in plant cells, phragmoplast आ जाएंगे plants में, and a cell plate will be formed that will form 2 daughter cells like this. Okay, and here also same thing will occur, 2 daughter cells with 2 daughter nuclei are produced. Same. Okay, बस फर्क क्या हुआ, 46 बनाए थे अपन ने यहाँ पे ब्रेकिंग करके, तो 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए। सिमिलरली 23 यहाँ पे ऊपर गए, 23 नीचे आए, तो क्या होगा देखो, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, मतलब शुरुआत में भी 23 थे और अभी भी 23 वाले 4 सेल्स बने। मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहे, बदले क्या नहीं, अमाउंट कम कम होते गया, बराबर है मैं मानता, लेकिन इसको इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस के जैसा क्यों बोला रहा है, क्योंकि शुरुआत में अपन ने जो 23 क्रोमोसोम्स लिए थे उनके 2 टुकड़े करते अपन एनाफेज में और फिर उनको सेपरेट कर देते, इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम इन द 4 डॉटर सेल्स, in the 4 daughter cells. So at the end of meiosis 2 we will get 4 haploid daughter cells which are different from each other. Different क्यों, क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम था उसका कैसा दिखता था, क्रोमोसोम का ऐसा था, उसके एंड्स ब्लैक थे, क्रोमोसोम के एंड्स ब्लैक थे, जबकि ये क्रोमोसोम पूरा व्हाइट था, राइट? ये वाला क्रोमोसोम कैसा था, इसके एंड्स व्हाइट थे और अंदर से पूरा ब्लैक था, राइट? और ये वाला क्रोमोसोम कैसा है, पूरा ब्लैक क्रोमोसोम था, बराबर, राइट? ये नीचे वाला पूरा ब्लैक है, नीचे आ गया था, और व्हाइट एंड्स वाला ऊपर चले गया था, इधर ब्लैक एंड्स वाला ऊपर गया था और व्हाइट वाला नीचे आ गया। देखो चारों अलग अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से, इसमें एक क्रोमोसोम ऐसा गया, इसमें एक अलग गया, इसके एंड्स व्हाइट, अंदर से ब्लैक, ये पूरा इज ब्लैक। तो इस तरीके से 4 टोटली डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं जो दिखने में अलग अलग रहेंगे, उनमें कैरेक्टर्स अलग अलग रहेंगे। ये गैमेट फ्यूज हुआ तो इससे अलग स्पर्म, ये स्पर्म में अलग कैरेक्टर्स रहेंगे, इसमें अलग कैरेक्टर्स, इसमें अलग, इसमें अलग। इसके लिए हर गैमेट से अलग प्रकार के बच्चे तैयार हो सकते हैं। और ये सब होता क्यों, अगर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था तो ऐसे अलग अलग बदलाव नहीं आते थे। ये सारे चीजें जो हो रही अलग अलग बनने का रीजन क्या है, गैमेट्स, the recombinants are produced as a result of recombination that occurred in Purkinje phase। समझा क्या हुआ, मियोसिस 2 में सिंपली माइटोसिस करने का, क्रोमोसोम्स को ब्रेक करने का एनाफेज में और उनको सेपरेट करने का। Therefore this will result in formation of 4 haploid daughter cells। पूरे लेक्चर में आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही होगी, मुझे मालूम है, मैं खुद परेशान होगा कब से वो कुत्ता भौंका है, लेकिन सुनो, उस पर फोकस मत करो, लेक्चर पर ध्यान दो। ओके, सो thus this is the end of your meiosis। अगर मैं स्टार्टिंग की सेल याद करूं तो वो डिप्लॉइड सेल थी, 2n = 46, उससे मैंने ये 2 हैप्लॉइड सेल्स तैयार किए थे और वो 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए। मींस पहले ये सेल से 2 सेल्स बनते nn वाले और वो n से वापस से 4 सेल्स तैयार होते वापस से। सो देयरफॉर ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको चार्ट छोटा सा, दिस इज मियोसिस, दिस इज मियोसिस। Diploid cell becomes get divided into 4 haploid daughter cells. Chromosome number gets reduced to half. Chromosome number gets reduced to half and results in 4 different haploid daughter cells. Okay, the meiosis 1 is actual reductional division, क्योंकि उसमें actual chromosome number आधे हो गए थे,
but in meiosis 2 the reduction does not occur, chromosome number remains same, hence it is also called equational division or homotypic division. homotypic और heterotypic दो वर्ड यूज करते हैं. देखो यहाँ पे क्या हो रहा, एक सेल से अलग प्रकार के सेल तैयार हो रहे, कैसे 2n के सेल्स n में हो जा रहे, मतलब अलग अलग सेल से, दोनों दिखने में अलग अलग है, साइज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग. सो इसको बोलते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन. हेटेरोटिपिक डिवीजन ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, सॉरी रिडक्शन नहीं, रिडक्शनल डिवीजन. जबकि ये वाला जो डिवीजन है इसमें n से एनी टाइप के सेल तैयार हो रहे हैं, n जैसे दिखने वाले सेल्स तैयार हो रहे हैं, सेम टू सेम सेल्स तैयार हो रहे हैं, hence it is called homotypic division, homotypic division also known as equational division. बराबर बराबर डिवीजन हो रही है ना, सेम जैसे दिखने वाले, बराबर दिखने वाले सेल्स तैयार हो रहे हैं, hence it is called homotypic or equational cell division. समझा? So meiosis 1 is also known as reductional division or heterotypic division. Chromosome number is actually reduced in meiosis 1. It does not reduce in meiosis 2. Which phase is actually responsible for separation of chromosome pairs? Anaphase 1. In anaphase 2 what happens? It is similar to mitotic anaphase, breaking of centromere and separation of chromosome pairs. Breaking of centromere and separation of chromosomes or daughter chromatids. Pairs नहीं, sorry, chromatids अलग होते हैं. ठीक है. So thus the complete division will occur and it results in formation of 4 haploid daughter cells. Okay. Now let's see certain significance of meiosis 1. Meiosis. So इसके दो तीन significance points है. What are the significance of meiosis? What is the significance of meiosis? फायदा क्या है? जब अपने पास माइटोसिस हो रहा, एक से दो सेल्स अपन तैयार कर सकते, तो फिर meiosis की क्या जरूरत है? सीधा इसका फायदा है तुम्हारे को गैमेट्स बनाने के लिए, क्योंकि गैमेट्स कभी भी अपने को हैप्लॉइड लगते, गैमेट्स डिप्लॉइड रहे तो उससे सेल अगर आगे फ्यूज हुए तो बदल सकते. जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बात करूं, ह्यूमन बीइंग की, सो इफ स्पर्म इज हैप्लॉइड, अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी, पूरी प्रोसेस जो थी स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म्स तैयार हुए. ओके. वैसे ही ओवम रहेगा, ठीक है, ओवम इज आल्सो हैप्लॉइड, एक ओवम मदर सेल से एक ओवम तैयार होता, 4 ओवम तैयार नहीं होते. अब ये क्या रहता है ये पहले समझ लो. मैं एक आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा, आपको एक्सरसाइज में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, आप एनसीईआरटी ओपन करो. गेट द एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस ऑफ meiosis where 4 equal cells are produced whereas only unequal number of cells are produced. ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है. वो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा हूं तो उसका आंसर है स्पर्मेटोजेनेसिस में एक मदर सेल से, स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें एक मदर सेल से 4 स्पर्म्स तैयार होते, जबकि फीमेल में oogenesis में, दैट इज ओवम प्रोडक्शन में, एक ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल से सिर्फ एक ओवम तैयार होता. ये बात लिख के रख लो, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तुमको मैं जब अपना एचआर चालू होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th में, तब तुमको समझ में आएगा. अभी के लिए इतना याद रखो, एक मदर सेल से 4 स्पर्म्स बनते, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता. एक ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल से सिर्फ एक ओवम तैयार होता, 4 ओवम नहीं बनते. नहीं तो 4 बच्चे हो जाएंगे ना फीमेल के एक साथ, ऐसा नहीं होता. 4 में से एक ही ओवम बनता और जो 3 सेल्स बनते meiosis में वो डीजनरेट हो जाते, वो कुछ काम में नहीं आते. सो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी meiosis होता, oogenesis में भी meiosis होता, but the 4 sperms are produced here and here only 1, that is unequal number of cells are produced here. Here equal number 4 number meiosis में जितने बनते उतने बनते स्पर्म्स, यहाँ पे 4 में से 3 डीजनरेट होते और एक ही ओवम बनता. ओके. अब ये जो स्पर्म और ओवम है ये दोनों हैप्लॉइड रहते, इन दोनों के अगर आपने फ्यूजन किए, सो ड्यू टू फ्यूजन यू विल गेट n प्लस n. क्या हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियस वो फ्यूज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2n न्यूक्लियाई. दिस इज कॉल्ड zygote. This is called zygote, the first cell of life. Zygote is the first cell of life. Zygos मतलब पेयर, zygote मतलब पेयर, zygote में देखे थे अपन ने. So यहाँ पे क्या रहा, एक न्यूक्लियस इसका और एक न्यूक्लियस इसका पेयर हो जा रहे, hence it forms zygote. Hence it forms zygote. It is called zygote. A pair of nuclei from 2 gametes. Pair of nuclei from 2 gametes. Gametes का नाम gametes क्यों पड़ा, क्योंकि गैमो मतलब फ्यूज होना, मैरिज होना, जुड़ जाना. गैमो ओके. सो गैमा मतलब फ्यूज होना, जुड़ जाना. यहाँ पे मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट and it leads to formation of a diploid cell, a larger cell containing both nuclei from father side and from mother side. इसने एक सेट लेके आया फादर के साइड से, इसने एक सेट लेके आया मदर के साइड से,
ओके। और जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा क्रोमोसोम कंटेंट मिलेगा बच्चे में, राइट। और फिर वो बच्चे का एक डिप्लॉइड सेल बन गई, पहली सेल। अब ये सेल डिवाइड होंगी विद इन द यूटेरस इन फीमेल्स बॉडी, वुम में डिवीजन होंगे, उसकी डिवीजन होंगे 1 2 4 8 16 32 स्टेजेस में जाके वो एम्ब्रियो में ग्रो होगा और एक कंप्लीट बेबी तैयार होगा। दैट ऑल डिविजन्स नाउ विद इन द फीमेल्स बॉडी इन यूटेरस दे विल बी डन बाय योर माइटोसिस। माइटोसिस में ग्रोथ बोल के पहला सिग्निफिकेंस देखे थे, जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स बाय कंटिन्यूअस रिपीटेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो, वो बच्चा बन जाएगा। लेकिन बच्चे के सारे बॉडी के सेल्स डिप्लॉइड है, क्योंकि ये जाइगोट कैसा था 2n, उसमें दो सेट थे ना क्रोमोसोम के, ये n प्लस ये n डिप्लॉइड हो गया। एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम आया, होमोलॉगस पेयर्स बन गई उसकी, और बच्चा फिर डिप्लॉइड रहता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, गैमेट्स हैप्लॉइड बनते हैं, जिससे फिर क्या होता, ऑर्गेनिज्म की जो डिप्लॉइड बॉडी कंडीशन है, अपनी बॉडी डिप्लॉइड रहती है, अपने बॉडी के नॉर्मल सेल्स डिप्लॉइड रहते हैं, सब में दो दो सेट रहते क्रोमोसोम के। So your normal body diploid condition is maintained. So this helps in gamete formation. This helps in maintaining the diploidy of organism or the ploidy of organism. Diploid nature बनाने के लिए इमेजिन करो अगर आपने गैमेट्स माइटोसिस से बनाए होते तो क्या होता। अगर गैमेट्स मैंने माइटोसिस से, मतलब मदर सेल कैसी है 2n और इसकी भी मदर सेल कैसी है 2n, उसमें माइटोसिस करो, गैमेट क्या बन जाएगा 2n। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा होता क्या, नहीं, तो फिर ये 2n रहेगा, ये भी गैमेट 2n रहेगा। अब फ्यूजन करो भला क्या हो जा रहा, फिर ये 2n ये 2n कितने n हो जा रहे, 4 सेट रहेंगे ना उसमें, और 4 सेट वाला थोड़ी, ये ऑर्गेनिज्म इज 2n वाला था, ये 4 सेट वाला है, ये जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा, ये जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा, इतने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी डिसऑर्डर होकर मर जाता हो, बच्चा ही नहीं बन सकता। मतलब तुमको डिप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड प्रोड्यूस करना है तो तुमको गैमेट्स हैप्लॉइड लगेंगे। तुमको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड तैयार करने का है तो तुमको गैमेट्स कैसे लगेंगे, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, और रिडक्शन करने के लिए कौन सी डिवीजन लगेंगी, मियोसिस। मींस व्हाट, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म्स डिप्लॉइड जाइगोट एंड इट मेंटेन्स द डिप्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, these also induce new variations through recombination. In packeting phase, new chromosome combinations are produced, that genetic variations are induced through this packeting phase. For this, from this point, the zygote will be having some characters from father and some characters from mother, but they are having differences. Therefore, this boy or girl will be different from in looking from his father and from her mother. उसमें फर्क रहेगा, क्यों, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस दैट ऑकर्ड इन पैकेटिंग फेज। सो पैकेटिंग फेज इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशंस दैट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द अपकमिंग चाइल्ड। ओके, देन these variations are observed in population। ऐसे बच्चों में, अब ये तो एक फैमिली की बात हो गई, एक परिवार की बात हो गई, ऐसे दुनिया में बहुत सारे परिवार है, पॉपुलेशन में बहुत सारे परिवार है, लोगों के घर है, तुम्हारे काका का घर है, तुम्हारे पड़ोसी का है, तुम्हारे कोई रिश्तेदार का है, पूरी पॉपुलेशन को अगर ओवरऑल कंसीडर करें तो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस रहते, पूरे पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं वेरिएशंस रहते। मींस विद इन द सेम ह्यूमन पॉपुलेशन यू कैन सी देयर आर वास्ट डिफरेंसेस, देयर आर वास्ट चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सबका डीएनए अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अपना, इसीलिए सब अलग अलग दिखते, एक जैसे नहीं दिखते। सो दिस जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ एन पॉपुलेशन, जेनेटिक डिफरेंसेस, आप में मुझ में भी डिफरेंसेस है, राइट। मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ लेकिन आप नहीं दिखते होंगे, उल्टा होगा क्या, मैं थोड़ा कम स्मार्ट दिखता हूँ, तुम ज्यादा स्मार्ट दिखते होंगे। तो ये जो चेंजेस है अपने में, दीज आर कॉल्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आपके जीन्स थोड़े से अलग है, मेरे जीन्स अलग है, अपने में वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस। ओके, सो meiosis helps in making variations among the individuals of population, that it increases genetic variability, it increases diversity। दुनिया में डाइवर्स है, इसके लिए अलग, सब एक जैसे दिखते क्या, सब एक जैसे दिखते क्या, अपन नहीं, सब में अलग अलग है, राइट। सो इट इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो। And overall, when there is diversity, when there are new changes that occur in population, that ultimately leads to evolution. Variations, they are the basis of evolution. Variation आएंगे तो बदलाव होंगे तो इवॉल्व होगा आदमी, नहीं तो गधे को गधेज पैदा होता तो गधे के घर में भी गधेज पैदा होगा।
Evolution कब होगा? When variation will occur, then only population will evolve. Okay, so this is all about the significance. It is the process significant in evolution because it induces genetic variations. ठीक है, in packaging phase that leads to making population different, and it is called genetic variability. It increases diversity among individuals, variability among individuals. It maintains ploidy by making haploid gametes. समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? This is all the significance and the uses, indirectly significance of this process meiosis. Here the process is done, chapter is finished. छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर इज फिनिश्ड. इतने कम लेक्चर्स में हो गया सर, मजा आ गया, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है. बट मैं आपसे होप करता कि आपने अच्छे से समझा होगा मियोसिस. मैंने पूरी जान लगा के बताने की कोशिश किया. अब आपको कुछ एडिशनल बिट्स मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एक एडिशनल लेक्चर लेंगे, फिर उसका अपन एनसीईआरटी रीडिंग, अब क्या बताना, वो पूरा चैप्टर ही एनसीईआरटी का इतना छोटा सा है, फिर भी एक एनसीईआरटी रीडिंग और उसके एमसीक्यूज कुछ आपको सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े से टिपिकल है. हाँ, इसके ऊपर थोड़े से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं, कुछ वो प्रॉब्लम्स आपको लेके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा. प्लस आपके कुछ एडिशनल बिट्स जो भी रह गए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब, और आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जाते जाते. पहले तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, आप एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर सकते खुद से, ठीक है. लेकिन आपको एज अ होमवर्क डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस आपको पता होना चाहिए, देने ही वाला था मैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. डोंट रेफर एनी नोट्स, कोई भी अपने बुक मत देखो, गूगल मत देखो, आपको खुद से कितना आता पहले वो देखो, क्योंकि आपके खुद का नॉलेज कितना मिला है मैंने पढ़ाने के बाद, आपको उसके हिसाब से आंसर आउट करो. एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस आर एक्सपेक्टेड. मैं आपसे 5 डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद से, और एडिशनल रेफरेंस के लिए आप बुक्स देख लो और आप ये होमवर्क खुद ही करो. मैं आपको कल आगे सिंपली बता दूंगा, रीड आउट करके, एक्सप्लेन करके. कुछ डिफरेंसेस आपको पता है, डेफिनेशन डाल दो दोनों की, एक सेल से 2 बनते, एक के 4 बनते. स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स में होते मियोसिस, मियोसाइट्स में, ये नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता. It helps in growth repair, it helps in gamete formation, it does not induce variation, it induces variation, it is not helpful in evolution, it is helpful in evolution. It is completed in simple 2 stages, karyokinesis, cytokinesis. It involves 2 stages, meiosis 1, meiosis 2. Okay, it's small, short process, takes less time, it takes long time, it is complex process. मैंने 8-10 बता दिया तुमको डिफरेंसेस, बाकी के तुम ऐड कर लो. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड दिस इज ऑल अबाउट योर मियोसिस. आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा चैप्टर पढ़ा के, बहुत मजा भी आया. क्लास में इससे ज़्यादा अच्छा होता था, बट आपने वीडियो में से भी अच्छे से किए होंगे, आई होप. We will see additional and miscellaneous points from this chapter in our next lecture.